130 करोड़ में लोगों में से किसने किया? सरकारी वकील साहब, माय लॉर्ड, आपको क्वेश्चन किया जा रहा है चैप्टर नंबर 1 पे, आप आंसर दे रहे चैप्टर नंबर 10 के ऊपर का जो गलत काम किया होगा ना। दुनिया भारत में कितने लोग हैं? 130 करोड़। अब बात अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए तो आपके लोग 10-10 साल जेल में है ना। मुझे डॉक्टर मत बताइए, उसके ऊपर रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, लेकिन 130 करोड़ लोगों में से किसने किया? Seal number 15, Mr. Arun Kumar and Mr. Rakesh Ambasha. Mr. Lordship, Yes. appellant has been convicted under This is section. IA number 1 of 2021. Lordship, You are arguing IA 1 of 2021. Sonu Kumar is the appellant in this case. Okay, Sonu Kumar is appellant. Yes. Lordship. He has been convicted under section 376D and 4 POCSO Act. 376D. Ji. It is alleged that gang rape has been committed with the victim, Yes. but victim produced by the prosecution in court, she has not identified the appellant in court. At least I am unable to understand what you are arguing. If you are not comfortable in English, you can argue in Hindi also. But what you are arguing, I am not understanding. Yes, continue. I only understood that your client is convicted for the offence punishable under section 376D. Yes. So on what ground you are claiming bail? On ground the victim has examined by the prosecution in court, Yes. who has not identified the appellant in dog. She has not named the appellant as a... So show me her evidence. May I kindly say Point out her evidence. PW6, Preeti Devi. You have annexed her deposition at which page? Lordship. Which page her evidence is there, deposition is there, deposition of the victim. Preeti Kumari is the PW6. From where I can get Preeti Kumari's deposition from this record? Lower court has called her already. No, why you people are not annexing those depositions in your interim applications? In judgment lower court can not do. in judgment also state in para 15 of the judgment. If you want us to rely on judgment, your case, you have no case then. No case against the appellant of the rape. You point out from the record. If you are relying on judgment is that of conviction, not of acquittal. Even though she has been partially declared hostile by the prosecution because she has not identified the appellant in dog. वकील साहब, मुझे ये समझता है जिसको रिलीफ होना है ना जी, उसने उसकी सर्टिफाइड कॉपी इसको लगाना चाहिए आयोग को, इसलिए तो लोअर कोर्ट रिकॉर्ड। हाँ, वो सब आप कोर्ट के भरोसे ही करोगे तो फिर वो तो होते रहेगा जब होना है तब। डिपोजिशन की कॉपी अगर भेज दिया तो 2 मिनट का काम है। एनीवे अब आ गया रिकॉर्ड तो ठीक है। हम जजमेंट के पारा 15 में लिखा हुआ है कि इन साक्षी ने उपस्थित दोनों अभियुक्तों को वो जजमेंट तो आपके खिलाफ है। वही जजमेंट बता के आप रिलीफ कैसा मिल सकता है आपको? ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस जरूर नहीं है कि यहाँ हम लोग एविडेंस, यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए लोग 7-8-9 साल जेल में रहते हैं। प्रॉब्लम वो है। इसीलिए अगर ये इंट्रीम एप्लीकेशन के साथ सर्टिफाइड कॉपी आप डिपोजिशन की लगाते हैं तो अब हमको पहले दिन दिख जाएगा जी क्या है करके। जी। अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए तो आपके लोग 10-10 साल जेल में जी है ना। जी। तो अब आप बताइए किस पैराग्राफ में विक्टिम ने बताया है कि मैं नहीं पहचानती? पारा 15 विक्टिम का है। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। दोनों अभियुक्त, हाँ पढ़िए आप पैरा 15। जी। वह रंगे हाथ पकड़ा गया, इसका मतलब है वो तुरंत पकड़ा गया। ये पैरा 15 है डिपोजिशन का। दोनों अभियुक्त उस समय नहीं पकड़ा है, बाद में मनोज पकड़ा गया और दूसरा पकड़ा गया
वो रंगे हाथ पकड़ा गया, इसका मतलब है कि वो तुरंत पकड़ा गया। You, what? You from deposition of the victim, you please tell me that the victim has not attributed accusing finger to your client. Okay? इस साक्षी ने, इस साक्ष्य हम पढ़ रहे हैं उसी को, उसके ऊपर डिपोजिशन पढ़िए आप। ये डिपोजिशन पढ़ दे आपका रहे हैं। आपके क्लाइंट का नाम क्या है? सोनू कुमार। हाँ, आप मुझे डिपोजिशन से पढ़ के बताइए कि मैं सोनू कुमार को पहचानती नहीं, सोनू कुमार ये घटना में नहीं था, सोनू कुमार का इस घटना से कोई वास्ता नहीं, इस टाइप से क्रॉस एग्जामिनेशन में जो मटेरियल आया है वो प्लीज पढ़ के बताइए। जी जी, पढ़ दे, ऊपर से पढ़ देते हैं। घटना 1 बजे दिन की है, करीब 2 साल पूर्व की बात है। उस समय निकास करके शौच करने बगल में गई थी। उस समय वहाँ सोनू और मनोज मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद नहीं, ये हमारे इसमें नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, ये डिपोजिशन जो है ना नीचे के कोर्ट का, उसमें नहीं है वकील साहब। मेरे पास तो उसी का सर्टिफाइड कॉपी का फोटो कॉपी है जो। तो आप वो सर्टिफाइड कॉपी के फोटो कॉपी में से किस पैराग्राफ हम पढ़ा जा रहा है? पारा 7। प्यारा से आप बताएंगे तभी हमको दोनों मुदालों प्यारा पहला पढ़ना शुरू कर दिए, प्यारा 7 है। दोनों मुदालों को नहीं पहचानती है, राइट। हाँ, both were present in dog, Yes, but she has not identified the appellants ओके। in dog. अब मुझे जजमेंट का वो हिस्सा पढ़ के बताइए जिसमें ये होने के बाद भी आपको कन्विक्शन दिया है, क्यों दिया है, उसके बारे में क्या क्या रीजन बताया है? रीजन उसका सिर्फ 164 का स्टेटमेंट है। आप पढ़िए वो जी। हाँ। जजमेंट से हुजूर पढ़ दें। अरे भाई साहब, वो विक्टिम ने आपको न पहचानते हुए भी आपको क्यों जजमेंट में जेल में भेज दिया, कन्विक्शन कर दिया, वो बताइए। वो क्या कारण लिखता है नीचे का कोर्ट? PW7 जो 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। पढ़ दे हुजूर इसमें लास्ट में। इसमें कहते हैं कि घटना के तुरंत बाद दर्ज प्राथमिकी में एवं न्यायालय में दर्ज 164 द प्रसंख्या के बयान में दोनों अभियुक्तों का नाम सही रूप से लिया गया है, किंतु पीड़िता द्वारा बाद में गवाही के दौरान दर्ज बयान में। अब ये बताइए मुझे, वो समझौता पत्र कहाँ है, वो बताइए, रिकॉर्ड पे कहाँ है? ऐसा कोई समझौता हुजूर हुआ नहीं था ऑन रिकॉर्ड। ये अटेंशन लिया गया है कि आप लोग। साक्षी ने समझौता पत्र को देखकर कही कि इस पर मेरा एवं अभियुक्तगण का फोटो है जिसे वह पहचानती है, दोनों फोटो सही है। समझौता पत्र पर सोनू कुमार मनोज माली का नाम जो लिखा है उसके संबंध में पूछने पर कहती है कि सही है। ये कहाँ है समझौता पत्र? ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, कितने विटनेसेस एग्जामिन किए? इसमें विटनेस एग्जामिन हुए हैं 9 हो गए ना, तो पहला कौन है? 9 विटनेस नंबर 1 जी। पारा 1 में शीला देवी है। एक मिनट
पैरा 1 शीला देवी। हाँ, जी। उस दिन हम मालिक को अपने जब हम रास्ते में मकई की खेत में देखा, प्रीति गोयस थे, हमको लेके किसी का नाम नहीं ली है। प्रीति कुमार की उम्र 10 साल है। ये कौन है लेडी? है लेडी क्लेम टू बी रिलेशन से विक्टिम्स की कौन है ये? दादी बता रही है कि दादी है ये? जी। ओके। सेकेंड PW2 वारा 14 में मालती ये दादी भी हॉस्टाइल हो गई है? जी। ये नाम नहीं लिया किसी का। माती देवी मदर है, भी नाम नहीं लिया अपिलेंट का। हाँ, ये दूसरा कौन है? माती देवी तो वो कौन है? मदर है। मदर? जी, ये भी नाम नहीं ली है। एक मिनट। तीसरा कौन है? तीसरा है नवल राम, हॉस्टाइल है। नहीं, हॉस्टाइल है, कौन है ये? जी, विलेजर है। विलेजर? जी। एक फेका नाम है, ये भी कहा घटना 2 दिन बाद घटना के बारे में सुना। एक फेकन नाम है, घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। PW4। ओके। PW4 कौन है? ये भी विलेजर है। ये भी विलेजर है? जी। एक PW5 है, शांति देवी, वो भी कही कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। एक मिनट। सावित्री देवी कौन है? वो भी विलेजर है। विलेजर? जी। ये भी हॉस्टाइल है। ओके। और बाद में प्रीति कुमारी है? PW6 विक्टिम है। ये पारा 24 में बोली है, दोनों में से किसी ने गलत काम मेरे साथ नहीं किया है। दोनों अभियुक्तों को देखते हुए कहती कि इन दोनों में से किसी ने मेरे साथ घटना नहीं की। घटना नहीं। ओके। जी। लोगों के कहने पर मैंने PW7 डॉक्टर है, उसने कोई रेप का साइन नहीं पाई है। डॉक्टर कांति कुमारी। ओपिनियन रिगार्डिंग रेप, देयर इज नो साइन ऑफ रेप। यस जी। नेक्स्ट आयो एक PW8 है भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी वायु। नहीं, ये तो मैजिस्ट्रेट है। PW8 लॉर्डशिप भूपेंद्र PW8 मैजिस्ट्रेट है ना? ई मजिस्ट्रेट जी, ई मजिस्ट्रेट साहब है। PW9 कृष्णनंदन शर्मा आयु। इन्होंने अपने बयान में बोला कि लड़की बोली थी हमको 25 साल मेरा उम्र है, लेकिन हम 15 साल लिखे थे। क्या? इन्होंने अपने बयान के पारा 4 में बोले कि लड़की अपना एज बताई थी 25 साल। किसने बोला पैरा 4 में? PW7। PW8 भूपेंद्र नाथ जी। पीड़िता ने अपने उम्र 25 साल, लेकिन मैंने 15 साल का अनुमान जी। यस। एनी state is appearing in this matter or not? Yes. My lord, so far the statement of victim is concerned, my lord. My lord, who is my lord PW6? She has stated in her statement, my lord, कि घटना 2 साल पूर्व 1 बजे के दिन की है। वह शौच के लिए बगल में गई थी। उस समय सोनू और मनोज उसके साथ गलत काम किया। हाँ, गलत काम किया होगा ना।
दुनिया भारत में कितने लोग हैं? 130 करोड़। अब बाद में अपने बट को ये बट इनके क्लाइंट ने किया कि नहीं किया वो देखना है। बट इन माय लॉर्ड द स्टेटमेंट अंडर 130 करोड़ में लोगों में से किसने किया गलत काम, उसके बारे में क्या बोलते हैं वो बताइए। नहीं, उसके बाद में वो कहती है कि हम नहीं पहचानते हैं, ठीक है, खत्म लेकिन हो गई बात, लेकिन खत्म हो गई। लेकिन जो कंप्रोमाइज पिटीशन जो वहाँ कोर्ट में दायर हुआ था, उसमें फोटो लगा हुआ था, उसके बारे में वो कहती है कहाँ है वो बताइए, कहाँ है वो? इसी में आया है नहीं, बताइए ना मुझे, कहाँ है जजमेंट वो? रिकॉर्ड पे कहाँ है वो? प्रूव हुआ क्या डॉक्यूमेंट? 164 के स्टेटमेंट सी हैज स्टेटेड माय लॉर्ड कि द रेप वाज कमिटेड विथ हर 164 का स्टेटमेंट सब्सटेंटिव एविडेंस है रहता कि कोरैबोरेटिव जस्ट आफ्टर एविडेंस? अक्रंस माय लॉर्ड सी हैज हाँ? गिवन जस्ट आफ्टर अक्रंस माय लॉर्ड सी हैज गिवन a 164 का स्टेटमेंट कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस My रहता lord, या only for- सब्सटेंटिव पीस ऑफ my lord- एविडेंस रहता? right my lord only then? statement is only for corroboration Yes. of the my lord so far doctor is concerned my lord doctor मुझे डॉक्टर मत बताइए, उसके ऊपर रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, लेकिन 130 करोड़ लोगों में से किसने किया? तो यही क्वेश्चन है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं पूछना। इनके क्लाइंट ने किया क्या, उसके बारे में एविडेंस है क्या? डॉक्टर का है तो माय लॉर्ड अरे भाई साहब, डॉक्टर सिर्फ बताएगा रेप हुआ या नहीं हुआ, इनके क्लाइंट ने किया कि नहीं किया ये नहीं बताएगा he डॉक्टर। has not given any clear cut statement but he has but my lord in a hymen old healed partial rupture vagina admitted सरकारी वकील साहब, my lord आपको क्वेश्चन किया जा रहा है चैप्टर नंबर 1 पे, आप आंसर दे रहे चैप्टर नंबर 10 के ऊपर का जो प्रश्न है उसका। हम पूछ रहे हैं आपको कि 130 करोड़ जनता में से इनके क्लाइंट ने किया, इसके बारे में क्या एविडेंस है? बस उतना ही बताइए, बाकी कुछ नहीं। बाकी रेप हुआ नहीं हुआ, पार्शियली हुआ, इम्पार्शियली हुआ, वो सब बातें छोड़ दीजिए। इसके बारे में कहती है वो सिर्फ Okay. 164 This is an में application for suspension of sentence and for releasing the applicant stroke accused on bail during pendency of the appeal filed by post by the impugned judgment and order, comma, the appellant, the applicant stroke appellant is convicted of offences punishable under section 376D of the Indian Penal Code, as well as under section 4 of the Protection of Children from Sexual Offences Act. First of all, the applicant stroke appellant is also, yes, convicted of the offence punishable under section 325 Roman 5 of the SC/ST Prevention of Atrocities Act. First of all, he is sentenced to suffer imprisonment for 20 years apart from imposition of rigorous imprisonment for 20 years apart from imposition of fine. On different counts. First one. Next. The learned counsel for the applicant stroke appellant argued that there is no iota of evidence to connect the applicant to the crime in question. First one. Almost all prosecution witnesses have turned hostile and the victim female child has not supported the prosecution case. First one. As against this, the learned APP argued that there is evidence of medical officer who had examined the victim. So also the victim has stated that she was subjected to into inverted comma galat kaand. Next paragraph. We have considered the submission so advanced and we have also perused record and proceedings. First of all, the only question which arises for consideration at this stage is whether the applicant is entitled for
liberty during pendency of the appeal filed by him. Full stop. Normally in cases of such heinous offence, comma, the applicant stroke appellant is not entitled for suspension of sentence provided there is evidence against him to connect him to the crime in question. First one. However, in the case in hand, the victim female child, who is examined as PW6, comma, has not supported the prosecution case. First of all, though she alleged that, though she has stated that she was subjected to the gang rape by Sonu and Manoj, comma, in chief examination itself, she has refused to identify the accused standing in the dock. First of all, in paragraph 24 and 26 of her cross-examination, comma, the victim female child has stated that the accused standing in the dock has not committed penetrative sexual assault on her, and he was arrested by the police on say of the public at large. Poster. Next para. PW1 Sheila Devi, who happens to be grandmother of the victim female child, had only has not supported the prosecution case. First of evidence of PW2 evidence of rest of the witnesses is also of no assistance to the prosecution, as they are primarily hearsay witnesses. First one. The medical officer who had examined the victim female child has deposed that on the basis of physical investigation, comma, she had not found any sign of rape on the victim female child. First one. On the basis of ossification test, PW7 Dr. Kranti Kumari has stated that the victim female child was aged about 16.5 years to 17.5 years of age. Post up. It is settled principle of law that there is always margin of 2 years on each side in ossification test. First one. Next one. In the light of this position of evidence appearing against the applicant stroke accused, he is certainly entitled for suspension of sentence and for his release on bail during pendency of the appeal. Therefore, the order. The application is allowed substantive sentence of imprisonment imposed on the applicant stroke appellant is suspended and he is directed to be released on bail on exhibiting PR bond of rupees 25,000 and on furnishing surety in the like amount to the satisfaction of the law and trial court. Also, the appellant stroke the applicant stroke accused should cooperate this court in expeditious disposal of the appeal.